Hello friends, I'm back and trying to make English easy for you and enjoyable and trying to improve your confidence. So this is the part 2 of the polite word series which we did about a week ago. Now I'm giving you the second part. We did about 10 days ago or a week ago. So this polite phrases and another word etiquettes have been joined onto you, right? So here it is, part 2. The words here are pardon, then it is please pardon me, I beg your pardon. These are three very close phrases and words which people get confused. So just write them down, just listen how to pronounce them. I'll clear all the meaning and confusion. Next is you are welcome. This is quite common but still we will discuss जिसको नहीं पता. After you. Next is it's my pleasure. Oblique means this or this जो भी आपको use करना है. It's my honor. तो जो भी आपको which either of them which you want to use, how to use them, what do you mean them, किसी में भी कोई confusion है वो हम clear करेंगे आज. First of this series is pardon. Pardon is we ask like if somebody is speaking and we are not able to understand whether it's on the phone or in the class or in the living room, you will just say pardon like we did excuse me, sorry in the earlier series. That means could you please repeat? Pardon, that means this. But if somebody, maybe the other person doesn't know the meaning of this, alright, so then you can use a simpler one. Could you please repeat? Sorry I didn't hear. तो आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा कहने के लिए. बट दिस इज़ वन वेरी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग पार्डन. तो मे बी पीपल मे नॉट बी नोइंग ऑल्सो जो आप यूज़ करेंगे, मगर आपकी जानकारी के लिए इफ़ यू गो टू अ वेरी English qualified, highly English qualified people, you can use them, or if they use you will understand. Next is please pardon me. This is when you are asking for forgiveness. What is forgiveness? Many people don't know this word also. This is माफ़ी मांग रहे हैं अगर, तो we'll say like कोई आपका ऑफिशियल है, प्रिंसिपल है, सर प्लीज़ पार्डन मी दिस टाइम, आई वॉन्ट मेक द मिस्टेक द नेक्स्ट टाइम. कोर्ट में जज के आगे बोल रहे हैं प्लीज़ पार्डन मी, आई विल नॉट डू इट, आई एम सॉरी, माई बैड, सॉरी जो आपने पिछले बारों में सीखे हैं. तो हम वो सारे यूज़ करके कह सकते हैं दिस इज़ टू आस्क सॉरी, अपोलोजाइज़ करने के लिए, प्लीज़ पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. तो ये और ये बहुत अलग हैं. और इससे तीसरा वाला आ रहा है जिससे लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. दिस इज़ आई बेग योर पार्डन. दिस इज़, ये आप इससे सिमिलर है या इससे सिमिलर है या कुछ अलग ही है? दिस इज़ सिमिलर टू दिस. सो पार्डन, जस्ट टू आस्क रिपीट, इट इज़ उसके लिए एक पूरा फ्रेज़ है. I beg your pardon. This also means excuse me, please repeat, I did not hear what you said. But these are, I have added them to the next series because ये थोड़ा सा हाई लेवल के लोग जो जानते हैं लैंग्वेज को वही अंडरस्टैंड करते हैं. कॉमन मैन नहीं समझता, दे गेट कन्फ्यूज इन ऑल दिस. वो पार्डन को जनरली माफ़ी से समझते हैं. सिर्फ पार्डन वर्ड कहीं भी आया तो जिस भी तरह से यूज़ अलग अलग तरह से होता है उसके अलग अलग मीनिंग आएंगे. पार्डन 1, सेकेंड प्लीज़ पार्डन मी 2, third I beg your pardon. So these and two, the first and this one, they are similar, that is different. Next is you are welcome. Alright, R मैंने यहाँ short form में लिखा है जो हमारी chat language होती है. ठीक है, you भी लिख सकते हैं just like that, mix and match, cool language. You are welcome. So when you say, जब कोई आपके घर आ रहा है then also you say oh you're welcome. एक तो ये होता है आपका स्वागत है, 1. Second is when somebody says oh thank you so much, you've done something, you'll say oh you're welcome. ठीक है, या हमने जो last time सीखा था oh it's all right, it doesn't matter, it's okay, you're welcome, which means दोबारा भी you can ask me to do this favor. और जो भी कुछ आपने उसके लिए किया है, मे बी आपने उसको हेल्प करी है, वो कहीं गिर गया था या कहीं ड्रॉप करा है गाड़ी से, उसको कहीं जाना था, वो प्यासा था, आपने पानी दिया है, खाना दिया है. सो द पर्सन सेज थैंक्स एंड देन यू say oh you're welcome, इट्स ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. एंड यू वेलकम एक तो स्वागत का मीनिंग होता है, दूसरा होता है यू सेइंग अरे दोबारा भी आप मेरे से ये
मदद मांग सकते हैं, कोई बात नहीं है, लाइक नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो लास्ट वाले भी आपको देखने पड़ेंगे, उनके साथ ज्वाइन करके बोलेंगे तो और पूरा एकदम इसका एग्जैक्ट मीनिंग यूसेज निकल के आएगा, ठीक है। सो यू आर वेलकम हैज़ गॉट दैट 2 यूसेजेस। अब इसमें आप ऐड ऑन क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आपको और भी ज़्यादा वार्मथ दिखानी है देन यू कैन से ओ यू वेलकम ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, कि आपने जो मदद की है उसके लिए आप हमेशा तैयार हो करने के लिए, या कोई आपके घर आया है तो अरे आप हमेशा स्वागत है आपका मेरे घर में, या यू वेलकम एनी टाइम, किसी भी वक्त दिन के, तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं है आप कभी भी आ जाएं। तो अगर हम किसी को और भी ज़्यादा वार्म स्पेशल इंपॉर्टेंस दिखानी है देन वी विल से यू वेलकम एनी टाइम और ऑलवेज़। ये ऐड करने से क्या हो जाता है, सो बहुत कुछ बोर्ड में नहीं ऐड हो सकता, तो हम स्पीच में आपको बोल के ऐड कर रहे हैं और समझा रहे हूँ, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, बिकॉज बीच में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो हर चीज़ लिखित में नहीं समझ में आती है स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट इज़ आफ्टर यू। इसका क्या मतलब बताए कहीं बोलेगा कि नहीं नहीं भाई मुझे ये काम लाइक यू नो इट्स आपके बाद, थोड़ा साउंड एक्चुअली पोलाइट नहीं कर रहा है, लेकिन इसको बोला तो टोन सॉफ्ट होगी आपकी, और इसका मतलब ये होता है जो कि अगेन पुराने ज़माने में अभी तक चला आ रहा है बट इट इज़ कंसिडर टू बी ओल्ड फैशन, दैट इज़ वी से ना लेडीज़ फर्स्ट, ओल्ड पीपल फर्स्ट, बस में जा रहे हैं या कुछ खाना शुरू कर रहे हैं, सो दैट्स अ ओल्ड फैशन सेइंग, नाउ इट्स आफ्टर यू। लाइक इफ़ वी आर गोइंग trying to climb the stairs in a bus, train or for a plane, 2-3 लोग इकट्ठे हैं सामने, सो विल से आफ्टर यू। लिफ्ट में जा रहे हैं आफ्टर यू, जिसको भी हमें इज्जत देनी है, whether it's a lady, whether it's your boss, whether it's somebody elder, senior citizen, so we just after you, ma'am after you, that way, alright। तो तमीज़ से प्यार से बोलना है, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आपको दिस इज़ द न्यू वर्जन फॉर लेडीज़ फर्स्ट और गेस्ट फर्स्ट, कुछ भी करके जिसको भी आप सम्मान देना चाह रहे हैं कि आप पहले, आपके लिए पहले रास्ता छोड़ा जा रहा है, यू विल से आफ्टर यू, ऑलराइट। सो इट इज़ अ वेरी मॉडर्न एंड अ वेरी स्मार्ट phrase, polite phrase. Next is it's my pleasure. So it's my pleasure. This is when somebody again comes to your place or takes your help or says thanks for something, और आप ये कहना चाह अरे ये करके मुझे खुशी है, ऑलराइट। एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी का कोई स्टार है, आप उसके फ़ैन है, वो आपके घर आ जाता है, आपको लाइक यू नो आप उसे चाय वाय पिलाते हैं, और मे बी ही और शी नीड समथिंग, कार उनकी ब्रेक डाउन हो गई, आप हेल्प करते हैं या अपनी कार थोड़ी देर के लिए देते हैं, तो रिटर्न करते वो बोलते हैं ओ थैंक यू सो मच आपने मेरी हेल्प करी थी, यू कैन से ओ इट्स माई प्लेजर। क्यों, आपको खुशी होगी ना करके, जिसको आप पसंद करते हैं, कोई आपका स्टार मिल जाए आपको, जैसे किसी को जो भी पसंद हो, आजकल वरुण धवन पसंद है, अमिताभ बच्चन पसंद है, नरेंद्र मोदी जी पसंद है, या किसी भी और फील्ड में पसंद है, मैरी कॉम जी पसंद है ना, नीरज चोपड़ा जी हैं, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी तरह के फील्ड के हो, या आपकी लोकेलिटी का ही कोई हीरो हो, ये बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी हो, अगर आपको उसकी मदद, इफ़ यू आर एबल टू हेल्प दैट पर्सन, वो आपको थैंक करे, तो आपके मन में नहीं आएगा अरे मुझे तो मदद करके खुशी मिली, आना चाहिए नहीं आए तो यू शुड से, वो आपको जब थैंक करे, एक तो यू आर वेलकम सर, और दूसरा इट्स माई प्लेजर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज़ इट्स माई ऑनर। अगेन प्लेजर या ऑनर दोनों में से एक भी बोल सकते हैं, दोनों भी। ऑनर का मतलब है सम्मान। तो अगर कोई बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी की आप मदद कर रहे हैं या आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, वो आपको थैंक करता है, तो वो आपके लिए प्लेजर भी है और ऑनर भी है। ऑनर इज़ सम्मान की बात है कि उसने औरों को नहीं कहा, आपको कहा, आप उसकी मदद कर पाए, इज़न्ट इट। सो यू शुड से, कहना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ा आदमी उल्टा आपसे मदद मांग रहा है, आप कर रहे हैं उसकी, तो यू शुड से इट्स माई ऑनर। रादर मैं कहूँगी हम किसी की भी मदद करते हैं तो हमें उसे गॉड का बड़ा गिफ्ट मानना चाहिए कि हम किसी की मदद कर पाए, तो वो हमें थैंक करे, तो वी शुड से, स्पेशली अगर वो रिस्पेक्टेड है, बहुत बड़ा है हमसे, चाहे काम की वजह से, चाहे उम्र की वजह से, चाहे ओहदे की वजह से, जो भी वजह से बड़ा है, तो यू कैन ऑलवेज से इट्स माई ऑनर फॉर अ पर्सन हुज रिस्पेक्टेड। और जो कोई छोटा भी है तो उसके लिए, जिसकी मदद करके या किसी के लिए कुछ खरीद के दे के, गिफ्ट दे के, पार्टी दे के, काम करके, मदद करके आपको अच्छा लगा, उसे यू विल से इट्स माई प्लेजर, ऑलराइट। इसके दूसरे और भी तरीके हैं, वो नोट कीजिए, सुनिए ध्यान से। इट्स माई प्लेजर की जगह आप कह सकते हैं द प्लेजर इज़ ऑल माइन। द प्लेजर इज़ ऑल माइन मतलब अरे ये जो कुछ भी करा है मैंने, ये इससे खुशी मुझे मिली है,
मदद आप किसी और की कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगे वाकई में ये तो मैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हैं या अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के लिए कुछ करते हैं, इट्स नॉट दैट कि आप उनके लिए कर रहे हैं, करके अगर कुछ अच्छा होता है तो आप एक्चुअली आप सोचिए तो आप अपने लिए करें, आपको खुशी मिलती है अपने क्लोज वंस के लिए कुछ करके, तो वो आपको थैंक करें। तो यू कैन ऑलवेज से, ओ बेटा, ओ बडी, it's the pleasure is all mine, hey bro, all the pleasure is all mine, right? So that is also another cool and also sophisticated way. उसमें आप फिर बडी वडी नहीं, ब्रो नहीं डालिएगा, उसमें सर मैम जो भी आपके हैं उन वो डालिएगा, सर द प्लेजर इज़ ऑल माइन, ऑलराइट? So these are some very sophisticated and high level words, polite phrases and etiquettes. What are etiquettes? I told you, please note this word. Etiquettes are good manners, and so use all these, pardon me, beg your pardon, and it is for a high level of people who know high level of English. Others will not even understand. At least now you will understand, your level will be raised. So if anybody uses it for you, you will understand and try to use it to raise your bar, your standard of English usage, and so thereby improve your confidence. Good luck, and if you like the video at all, please like it, please comment it. I love your comments and your likes, and do subscribe and help your friends also. Share these videos, good videos, our hard work with them, and I can just say subscribe, share if you feel like it. Okay, bye bye.